Good morning. Welcome to my channel Exam Study. My name is Shailesh Sharma and today we will be discussing about the revolt of 1857. This chapter is also mentioned in the 8th class of NCERT and 8th class ICSE board. So in this video we will be discussing about its causes, leaders of the revolt, and books on 1857 revolt by various writers. We will be discussing in this video about all these factors. So the first factor is, what was the revolt of 1857? See, 1850 revolt of 1857 is a an armed revolt by the soldiers and the leaders against the Britishers. Against the British government. So, what are the causes of it? The revolt of 1857. The causes were, some believe there were some religious causes, and under these religious causes, this is interference of Britishers in religious matter, co-education system introduced by the Britishers was one of the religious causes, and Sati in 1827, William Bentinck has abolished the Sati in India. So it was one of the causes. So religious causes में तो यही थे. अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ political causes that are related to the politics of the country. See, Nana Saheb was the adopted son of the Peshwa, was denied pension. So for him, this was the cause to join the revolt of 1857. Doctrine of lapse as originated started by the Lord Dalhousie. I will give the link in the description. I made a video on doctrine of lapse. You will be getting all the details about doctrine of lapse and the kingdoms who were annexed by this policy of Lord Dalhousie. So these were the political causes. After that, some economic causes. The economic exploitation of the peasants by the Britishers was also one of the causes for the revolt of 1857. The land revenue system, permanent settlement, Mahalwari, Driyotwari. I had also made a video on these three land reforms as introduced by the Britishers in various provinces. So you will be getting all the details in that video. And the immediate cause for the start of the revolt of 1857 was the use of immediate
cause use of greased cartridges as they by the soldier. This was one of the immediate cause, but still there were so many causes and there are so many leaders associated with the revolt of 1857. Still the 1857 did not succeed. It was 1857 revolt was suppressed by the Britishers. Still so many leaders were associated with the revolt, and still 1857 revolt did not succeeded. And what are the reasons for the failure of this revolt? The reasons we will be discussing. Reasons for failure. Number one, we cannot say the unity was the factor which added to the failure of 1857 revolt. Unity was there in 1857. The leaders of the various provinces fought against the Britishers. So reason that was not there. Britishers were more technically skilled. ये एक रीज़न था कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो नहीं चल पाया. यूनिटी थी, बट स्टिल देयर वर सम किंगडम्स हु सपोर्टेड ब्रिटिश, लाइक निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गुलाब सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, supported ब्रिटिश. ओके, सिंधियाज तो रानी लक्ष्मीबाई, उनको जो लड़ाई हुई थी उसमें सिंधियाज का रोल था. तो ये कुछ किंगडम्स थे जिन्होंने कि ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इंडियंस के खिलाफ. तो ये कुछ रीजंस थे, इस वजह से इंडियंस जो थे वो उस रिवोल्ट को सक्सीड नहीं कर पाए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस रिवोल्ट को दबा दिया. एक रीज़न ये भी था कि कॉमन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या पैट्रियटिज्म वॉज नॉट देयर. लोग लड़ तो रहे थे 1857 का रिवोल्ट, लेकिन सबकी अपनी अपनी वजह थी. नाना साहिब की क्या वजह थी? ही वॉज डिनाइड पेंशन. रानी लक्ष्मीबाई की क्या वजह थी? कि उनको उनकी झांसी एनेक्स कर दी गई थी, उन्हें दी नहीं जा रही थी उनके हस्बैंड के डेथ के बाद. बेगम हजरत महल का क्या था कि बेगम हजरत महल जो लखनऊ थे वो भी लखनऊ को भी एनेक्स कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में. हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में वो नहीं हो सकता था. इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो में दिया है. तो ये सारे के सारे क्योंकि एक कॉमन फैक्टर नहीं था जिसके लिए वो सब लड़ रहे थे. सोल्जर्स लड़ रहे थे, लेकिन सोल्जर्स क्यों लड़ रहे थे? सोल्जर्स को ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थी वो यूज़ करनी थी, इसलिए सोल्जर्स 1857 का रिवोल्ट लड़ रहे थे. और हर किसी के पास अपनी अपनी वजह थी बस लड़ने के लिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं था. इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे. देखिए, दिल्ली में जो 1857 का नेतृत्व किया था, लीडरशिप जो की थी, दैट इज़ बहादुर शाह जफ़र एंड जनरल बख्त खान. इसके बाद लखनऊ की अगर हम बात करते तो लखनऊ में इट वॉज बेगम हज़रत महल, वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ लखनऊ,
बेगम हज़रत महल और ब्रिजेस, कादिर, अहमदुल्ला, कानपुर में थे नाना साहेब, जिनका रीज़न क्या था, अजीमुल्ला खान, जो कि एडवाइज़र थे तात्या टोपे के। तो नाना साहिब का रीज़न अलग था बेगम हज़रत महल का, क्योंकि एनेक्सेशन हो रहा था बहादुर शाह ज़फ़र का, क्योंकि उनको उनकी आगे के जो मुग़ल प्रिंस होंगे वो केवल प्रिंस कहलाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। उनका रीज़न ये था। तो सबके अपने अपने अलग अलग रीज़न थे। उसके बाद झांसी का तो सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में थे अमर सिंह और कुंवर सिंह। इलाहाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जिहाद छेड़ दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ही जिहाद अगेंस्ट who provoked jihad against Britishers in the revolt of 1857. It was Maulvi Ahmadullah, and he was the leader of Allahabad and Banaras. उसके बाद असम में थे मनीराम दत्ता और कानपुरेश्वर सिंह। सॉरी, मैंने वहाँ वो कर दी। मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने की जिहाद किया था, ही वॉज द लीडर इन फैज़ाबाद, इलाहाबाद बनारस की मौलवी लियाकत अली थे। मंदसौर, जो कि एमपी में है, फ़िरोज़ शाह। अभी ये जो मैंने लीडर्स बताए, इनसे आप लोग इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कौन से प्रोविंस में ये फैला था। देखिए, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, उस टाइम पे जगदीशपुर बोलते थे, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। कुल्लू में थे राजा प्रताप सिंह, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश था उसमें भी 1857 का जो विद्रोह था वो हुआ था। हालांकि उस टाइम हिमाचल प्रदेश उसमें नहीं था, पंजाब के अंडर में ही वो आता था। और राजस्थान में थे जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह। तो ये लीडर्स थे 1857 के रिवोल्ट के। अब इनके ऊपर कुछ किताबें भी लिखी गई 1857 के रिवोल्ट के ऊपर, उनके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। आरसी मजूमदार ने बुक लिखी, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857।
S.B. चौधरी की बुक जो थी थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। अशोक मेहता, इन्होंने बुक लिखी थी द ग्रेट रेबिलियन। के सेनगुप्त, इन्होंने बुक लिखी थी रीसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। एरिक स्टोक ने एक बुक लिखी थी पीजेंट्स एंड द राज। विनायक सावरकर, वीडी सावरकर, द वॉर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बीबी मालसेन, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। तो ये थी जो बुक्स जो 1857 के रिवोल्ट के ऊपर लिखी गई। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है आपके रिबेलियन के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में, सेंटर्स के बारे में, और जो किताबें उसके बारे में लिखी गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।